आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लेन मिरर जिससे आप बिल्कुल फैमिलियर हैं, हम डेली सुबह सुबह अपना फेस मिरर के अंदर देखते हैं। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इमेज मिरर के अंदर बनती है। यहां इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो पिक्चर के सामने एक छोटी सी डॉल है और इस डॉल की इमेज मिरर के पीछे बन रही है। जी हां, यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर से कैसे होता है। यहां हमें एक छोटी सी बात समझनी है कि जब भी लाइट एनर्जी प्रोपोगेट करती है तो लाइट के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होती है and the direction of light can be represented with the help of the term that is ray. That is, the ray of light represent the direction of light, and the light incident on our eyes, and hence we can say the rays of light incident on our eyes, so that we can see the object or images. When light enters to our eyes, then there is a characteristics of our eyes, that is, our eyes can backtrace द डायरेक्शन ऑफ रेस, और ये बैक ट्रेसिंग का इंस्ट्रक्शन ब्रेन हमारी आईज को देता है। इस इंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या है? इस बैक ट्रेसिंग का पर्पस इमेज या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सर्च करना है। लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर। इफ आई प्लेस वन सोर्स, तो इस सोर्स से लाइट चारों तरफ कई सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। Let's say there will be one direction here, there will be one direction here, and one direction is here. अगर मैं अपनी आंखों को यहां पर रखता हूं, then our eyes will find that light is coming from this direction. If I place my eyes here, then what our eyes found? That is, the light is coming from this direction. If I place my eyes here, then again what signal reaches to our brain? That is, the light is coming from this sun point. So here, this is the common point from where all the light rays are coming, so that our brain can understand by back tracing all the rays what is the intersection point, what is the common point, and this common point represent the position of object, or maybe this is the position of image. Now we talk about the plane mirror. If we stand in front of plane mirror, then what we will find here, that is, our image will be formed behind the mirror. लेकिन अगर मैं मिरर के पीछे जाकर देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, बट दोबारा से सामने देखता हूं, it seems that again image is formed behind the mirror, but actually मिरर के पीछे कुछ नहीं है. So this is what? This image is known as the virtual image. So the plane mirror forms the virtual image, and virtual image always form behind the mirror. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मिरर हमारी आंखों के साथ चीटिंग करता है। ये मिरर हमारे ब्रेन के साथ चीटिंग करता है, यानी कि ये हमारी आंखों को धोखा देता है। Let's see one example here. Let us consider this O is an object here, और इस ऑब्जेक्ट पर सन से लाइट इंसिडेंट होगी और लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकराकर कई सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमने कंसीडर किया कि दो लाइट की रेज इस मिरर पर इंसिडेंट होती है। वैसे तो बहुत सारी लाइट इंसिडेंट होंगी, लेकिन इमेज को बनाने के लिए, एक कॉमन पॉइंट को फाइंड करने के लिए, बैक ट्रेसिंग के लिए हमें कम से कम दो रेज की जरूरत है। सो देयर इज अ नीड ऑफ ओनली टू रेज, minimum two rays. So that let us consider these two rays are the incident rays incident on the plane mirror. These are the point of incident, so I can make normal on the point of incidence. So the incident ray makes incidence angle from the normal, so this is I. As per the laws of reflection, that is, incidence angle is equal to reflection angle. So here reflection angle भी किसके इक्वल होगा? I के इक्वल होगा. So at this incidence angle and hence इस reflection angle पर ये light reflect होगी. On the other hand, the second incident ray incident on the second point of incident, again I will draw the normal for the same. This is the angle of incidence for the second incident ray.
So again, as per the laws of reflection, this is the reflection angle. So यहां पर reflected ray यानी कि सेकेंड रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे सेकेंड रिफ्लेक्शन एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी. सो आई कैन मेक हियर दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. सो डायग्राम इतना फाइन नहीं है क्योंकि मैं एक फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं. नाउ इफ आई प्लेस माई आईज हेयर, देन देयर इज ए एबिलिटी ऑफ आवर आईज, and that ability is provided by our brain. That is, always our eyes backtrace the incident ray. Incident ray means वो रेज जो कि आंखों पर इंसिडेंट होती है. So when eyes will backtrace this rays, so this is the direction from where light is coming. तो अब आपको पता चल रहा है ना कि किस तरीके से हमें मिरर धोखा देता है, हमारी आईज के साथ चीटिंग करता है. From the second reflected ray, again our eyes will backtrace the second reflected ray, and we will find here somewhere this is the image of an object. हमारी आईज जब एक सिग्नल ब्रेन को पहुंचाती हैं तो ब्रेन इमेजिन करता है कि ये एक कॉमन पॉइंट है. इस कॉमन पॉइंट से सभी की सभी रेज हमारी आंखों तक आती है, यानी कि ये एक परसेप्शन क्रिएट करता है और इस परसेप्शन को हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज बोलते हैं. सो दिस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. नाउ अगेन आई रिकॉल कि आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर पहचानेंगे तो जितनी हाइट आपकी है मिरर के अंदर भी इमेज की हाइट सेम रहती है. अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे तो मिरर से राइट हैंड रेज होगा, और अगर आप अपने राइट हैंड को रेज करेंगे तो मिरर के अंदर जो इमेज है अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेगी. सो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता लगता है कि जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल नेचर है, क्योंकि एक्चुअल रेज मिरर के बिहाइंड इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इट अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट. पहला पॉइंट. Second point, the image formed by the plane mirror is laterally inverted. The meaning of laterally inverted means if I raise my left hand, then image will raise that right hand. If I raise my right hand, then the image formed due to the plane mirror raise its left hand. So this is the characteristics of image. यहां मैंने आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में एक काफी इंटरैक्टिव इमेज फॉर्मेशन एनिमेशन तैयार किया है, और वो इमेज फॉर्मेशन एनिमेशन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है या एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए बोल सकते हैं, और सेकंड इज फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग सम हाइट. सो लेट्स एंजॉय दैट एनिमेटेड वीडियो दैट आई हैव मेड फॉर यू, स्पेशली फॉर यू.